So, welcome you all to the class, and I hope that you are doing the regular work which I'm giving in the WhatsApp. You all are following that and you are implementing it. There are one or two or three who ask me the doubt, and rest I assume that all are very intelligent, so they understand everything and they don't need any help from me. So I'm happy for that. But I hope that my assumption is very right, that you all understand and you're doing it. But sorry to say that very less attendance. There are 3 divisions, and in my WhatsApp group, there are more than 100 children in the class 9 group. But here I could hardly see 23 and 30 at max children in the class. So I really don't understand what are the problems with others. Are there any issues that they cannot join? Or what are the problems? If I could help it out and we can reschedule or something like that, please let me know. Please give me some comments regarding the attendance of your friends. Please, those who are present right now, there are 24, 25 children. Okay, so please help me out with the attendance part. That what are their issues if we could help them, and are they watching the videos later? Then please let me know. Okay, so here we have discussed we have done 3 classes of polynomials. In that first one, we did the introduction of polynomial. Okay, so good afternoon all of you. Please join the class quickly. Okay, and then in the second part, we learned with the actual division method. Okay, in third, we discussed the factor and the remainder theorem. Okay, and here now we are starting with the factorization. जैसे आपने class 8 में किया था, first algebraic expression and then one chapter based on the factorization. So now here we are dealing with the factorization of polynomial. Okay, so for factorization of polynomial, naturally the very first part which we are going to use is, yes, what we learned just now, the last session, is factor theorem. So basically we are going to use factor theorem. Apart from factor theorem, we are going to discuss here middle term splitting. Again, this you have learned it in class 8. Okay, what we are doing right now, if you have attended your class 8, when you can see that, obviously you can see that there's just a revision of your class 8 concept. But only difference is here that the coefficient or the constant, what here you have learned is real numbers. Now you are familiar with irrational numbers also. So here the only form is like when we discuss about quadratic polynomial, difference for you, because still my class 10 children does, that's why I invited them also for this class if they want. This is the concept, like how many times I explain, it's not enough for the children. I don't know why. So pay attention, understand the concept and do practice. Okay. If you have reference book, if I say 100, is that okay, this is difficult, it is going to remain difficult throughout your life. Okay, so please pay attention to the concept. Initially you will feel it is a revision part because we have done this in your class 8. Okay, so we are starting here with the middle term splitting of a quadratic polynomial. Quadratic polynomial means the highest degree is 2. Secondly, quadratic polynomial means maximum number of zeros are 2. And I'll do it, you will understand. I'm starting with the simplest and then actually we'll go for middle term splitting. Okay, और middle term splitting के लिए मैं एक ही type के 4 example दे रही हूँ. You have to compare it, analyze it, and then we'll go for conclusion. So I hope everyone paying attention. Very sorry, but 26 children live. I never expect that for 9th standard. Please, again, I'm repeating, help me out with the attendance part. Those who are present here, please find out and let me know what is the exact issue for your friends for not attending the class. Okay, let's begin today. So here, when it comes to factorization of polynomials, what you have done it in your class 8 is something like this. See, you learned like x squared plus 4x plus 4. Remember? Okay, so this is you comparing with your identities. Okay, isn't it? Something with, and this should be 2 into 2ab. So this is nothing but x plus 2 into x plus 2. So the factors of x squared plus 4x plus 4 was something like this. Then you also learned something like this. And you know this is nothing but x whole square
2 का whole square, and this is nothing but a square minus b square form, which could be written as a plus b into a minus b. So you learn this. Okay, and after that you learned something with before giving you the hint exactly where I'm reaching, you learned about this formula, isn't it? You remember this identity. So this is x square a plus b times x plus b. Remember this formula, x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b times x plus ab. ये भी फॉर्मूला है, तो जो इसका रिवर्स है दैट इज नथिंग बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है, इसका जो रिवर्स जाता है मतलब दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, और यहाँ से मतलब इसमें से जब आप इस तरीके से जा रहे हो व्हेन यू आर राइटिंग, देखिए यहाँ पे भी जैसे कि आई आस्क्ड यू x plus 1 the whole square, so this is nothing but x plus 1 into x plus 1. यदि आप ये स्प्लिट करके कर रहे हैं या मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से कर रहे हैं, what are you doing? Multiplication. Multiplication and factorization again they are reverse process of each other. ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक प्रोडक्ट मिलती है, और जब प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हो तो आपको फैक्टर्स मिलते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो नेचुरली यहाँ पे ये प्रोडक्ट है और ये इसका फैक्टर्स है, और व्हेन यू मल्टीप्लाई फैक्टर्स यू गेट द प्रोडक्ट फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई them. तो इस तरीके से यहाँ पे रिलेशन है. तो ये आपको आइडेंटिटीज यूज करके सबको आता है दैट हाउ यू डू इट. Children, please, I'm not here to take the attendance right now. Pay attention and try to understand the concept. Okay, welcome you all for the class once again. Pay attention to what we are doing here. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपने क्लास 8 में किया हुआ है, बट यहाँ पे सिर्फ थोड़े से नंबर्स कॉम्प्लेक्स होंगे, तो किस तरीके से करना है वो आपको सिर्फ मैं बता रही हूँ. हम पहले 4 एग्जाम्पल्स जैसे मैंने कहा सिमिलर लाइनिंग पे ओनली विद साइंस भी डिस्कस. तो मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और दूसरा एक एग्जाम्पल ले रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ठीक है, ओके, बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा वेरी क्लियरली, बट आई डोंट वांट यू टू सॉल्व इट राइट नाउ. आई वांट यू टू पे अटेंशन राइट नाउ. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये तो है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसके यहाँ पे 3 टर्म्स है. ओके, और इसकी जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म दैट इज I will call this as a first term, the middle term and the last term. Okay, तो ये जो हमारी middle term है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो हमें मिडिल टर्म्स को 2 पार्ट में डिवाइड करनी है सच दैट उसके जो कोएफिशिएंट है, आई होप यू ऑल आर लिसनिंग मी. ओके, इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसकी जो कोएफिशिएंट का सम है वो हमें लास्ट टर्म जितना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पूछूं कि ये नंबर 6, क्या आप 6 के फैक्टर्स बता सकते हैं कौन कौन से होता है? तो 6 कौन कौन से टेबल में आता है? तो आप मुझे 2 ऑप्शन देंगे यहाँ पे. It is 6 1s are 6 and 2 3s are 6, isn't it? So you have only 2 choices here since it's a very small number. You have 2 choices here that you say 6 1s are 6 and 6 as 2 3s are 6. ओके, तो इस तरीके से आपको देखना. तो आपने 6 जो है, तो ये जो हमारी लास्ट टर्म है इट विल वर्क हियर एज अ प्रोडक्ट, जिसको हम कहेंगे प्रोडक्ट. ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है उसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं. तो ये तो छोटा नंबर है तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, तो मैं जल्दी से डिसाइड कर पाऊंगी कि मुझे किसको सेलेक्ट करना है. तो किस तरीके से सिलेक्ट करना है? अब मुझे यहाँ पे चाहिए -5, ठीक है ना. तो और यहाँ पे क्या है साइन 6, तो 6 के फैक्टर, और ये 6 की साइन क्या है? प्लस है. तो मुझे यहाँ चाहिए 5. पहले तो मैं साइन नहीं देखूँ, सिर्फ 5 देखूँ. तो 5 मुझे कब मिलेगा? तो आप कहोगे 6 and 1 का डिफरेंस 5 है, 2 + 3 भी 5 है. अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो 6 - 1 और दूसरा है 2 and 3, 2 + 3. तो लेट मी टेक इट लाइक दिस, 6 - 1 and 2 + 3, दोनों केसेस में मुझे 5 मिल रहा है. 6, पर मुझे क्या चाहिए? -5. ओके, मुझे -5 चाहिए, तो नेचुरली मुझे साइन क्या चेंज करनी पड़ेगी? -6 + 1, तभी मुझे -5 मिलेगा. और दूसरा क्या रूल है? -2 + -3, तब भी मुझे -5 मिलेगा. अच्छा, सपोज ये कर रहे हैं चिल्ड्रन, आई होप यू आर विद मी. एक चीज मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है. वन इज योर क्लास 6th एडिशन and the second is multiplication.
Okay, before I explain you further here, please remember your addition and subtraction of integers. What does it say? तो मैं थोड़ा सा वो रूल रिवाइज करती हूँ. इंटीजर्स में जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, अब आप कहोगे कौन से दो नंबर्स और उसके साइन क्या है, राइट? तो व्हेन टू नंबर्स विथ सेम साइन आर टू बी एडेड, two numbers with same sign to be added, you add them and your answer will also have the same sign as of numbers. यानी कि जब मैं दो पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रही हूँ, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों की साइन सेम है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है और मेरे आंसर भी पॉजिटिव होगा यदि दोनों नंबर. एंड इसी तरीके से मेरे पास दो नंबर नेगेटिव है, दो नेगेटिव नंबर्स हैं, तो नेचुरली आई ऐड देम एंड आंसर भी मेरा नेगेटिव में होगा. ठीक है. दूसरा, इफ सपोज द नंबर्स आर हैविंग डिफरेंट साइन, डिफरेंट मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं एंड आंसर विल हैव बिगर नंबर्स साइन. ठीक है, ये सबको याद है जो आपने क्लास 6 में किया हुआ, 7 में भी किया हुआ है रिवाइज. ओके, मल्टीप्लीकेशन में आपका रूल क्या है, जब दो नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि जब दो नेगेटिव नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर पॉजिटिव है, और यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव है. ओके, तो ये बेसिक्स है, ये आपको याद रखना है, उसी को हम यहाँ फॉलो करना है. तो आपने ये नोटिस किया कि मुझे 6 के दो फैक्टर्स मिले, उसको मैं साइन के अकॉर्डिंग जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए -1, तो -1 मुझे दो केस में मिल रहा है, -6 + 1 और या तो -2 -3. तो यहाँ पे -6 + 1 कर रही हूँ तो मुझे -6 आंसर मिल रहा है, और -2 -3 कर रही हूँ तो मुझे +6 मिल रहा है, और मुझे चाहिए क्या, +6. तो आपने देखा, एक तो मैंने क्या किया, 6 के फैक्टर्स निकाले, फिर मैंने उसको मिडिल टर्म वाली साइन दी, फिर देखा कि मेरे पास ऑप्शन, तो टोटल हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए, अल्टीमेटली 4, क्योंकि दो नंबर है, दोनों पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव, या तो पहला वाला पॉजिटिव या तो दूसरा वाला पॉजिटिव, इजंट इट, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, और दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं. तो जिस तरीके से आप, तो आप सोचिए जितने लंबा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट करती हूँ. इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न दिस साइन टेबल. कुछ याद आ रहा है, ऐसा करके हमने किया था क्लास 8 में. ओके, तो साइन टेबल में आपको देखना है लास्ट नंबर की साइन, जिसको मैं क्या कहूंगी, प्रोडक्ट. लिख रही हूँ x + a into x + b is equal to what, x² + a + b times x + a. तो आप देखिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे आप उसको ऐड कर रहे हैं, और उसी लॉजिक से हम यहाँ पे प्रोडक्ट और सम कहते हैं. और ये जो है मेरा साइन टेबल है, यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स मिलेंगे, उसकी साइन करेंगे. तो हम लर्न कर रहे हैं साइन टेबल. यदि ये आपके दिमाग में फिक्स हो गया, then it is very very easy for you to go through the concept, okay, to apply the concept of कोई भी difficult question, maybe वो रियल नंबर्स हैं या कैसे भी, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं. तो ध्यान रखिए, अब मैंने जैसे कहा यहाँ पे लास्ट टर्म की साइन कौन सी हो सकती है, क्या क्या साइन हो सकती है, तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो प्लस है या तो वो माइनस है. चलिए, तो प्रोडक्ट या तो प्लस है या तो प्रोडक्ट माइनस है. अब जब प्रोडक्ट प्लस है, ठीक है, प्रोडक्ट प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आप कहोगे या तो ये माइनस होगा या तो ये प्लस होगा. तो अगेन जब प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो प्लस या तो माइनस. उसी तरीके से जब लास्ट टर्म माइनस है तो यहाँ ऑप्शन है माइनस या तो प्लस. समझ में आ रहा है? ओके, तो अब देखिए आगे क्या करना है, प्लीज इसको याद रखिएगा. अब देखो ऐसा एग्जांपल जिसमें प्रोडक्ट भी प्लस है, सम भी प्लस है. ओके, इसका मतलब कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है. कोई भी दो नंबर्स अभी फिलहाल आप सोचे, ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे उसकी प्रोडक्ट भी प्लस आए और जिसको सम करने पर उसका सम भी प्लस आए. तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों नंबर्स आपके पॉजिटिव है, तब, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए. सो दैट मीन्स हमारे दोनों फैक्टर्स यहाँ पे प्लस की साइन देंगे. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस. और उसी लॉजिक के साथ इफ आई गो लाइक दिस, कि दो नंबर को ऐड करने पे मुझे माइनस साइन मिले, पर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे पॉजिटिव साइन मिले. दो नंबर को ऐड करने पे मुझे आंसर माइनस में चाहिए, पर उसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे पॉजिटिव चाहिए. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? रिपीटिंग वन मोर टाइम. ऐसे दो नंबर्स, ओके,
ऐसे दो नंबर्स मुझे चाहिए जिनको मैं जब ऐड करूं तो मुझे नेगेटिव आंसर मिले, पर जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पॉजिटिव आंसर मिले। तो ये कब हो सकता है? जब दोनों नेगेटिव नंबर्स हो, क्योंकि माइनस, दो नेगेटिव नंबर्स है तो आप ऐड करोगे और आंसर भी आपका माइनस होगा। ओके, और जब उनको मल्टीप्लाई करोगे दो नेगेटिव नंबर्स को तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। तो इस केस में हमारे दोनों नंबर्स का सेम साइन है। और यदि मैं इसको दूसरे लॉजिक से कहूँ तो मुझे प्रोडक्ट प्लस कब मिलती है? ओके, जब प्रोडक्ट प्लस है तो यहाँ पे आप हमेशा फैक्टर्स को ऐड करोगे, क्योंकि सेम साइन कब पॉसिबल है ना? सेम साइन में क्या करते हो, आप ऐड करते हो। when two numbers have same sign, अभी मैंने बताया इंटीजर्स का, when two numbers have same sign add them, whether two negative or two positive। तो इस लॉजिक के साथ आप जा सकते हो कि जब प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों नंबर्स की सेम साइन, मतलब कि हमेशा एडिशन ऑफ फैक्टर्स होगा। ठीक है, अब आ रहे माइनस से प्रोडक्ट, मतलब कि आपकी लास्ट टर्म जब माइनस है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, सेम है, तो देखना आप फैक्टर्स कितने अंदर आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो इन दिस केस ओके, तो मैं थोड़ा सा पहले जनरलाइजेशन कर लेती हूँ, क्योंकि जब एक पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव है। अच्छा, जब एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, isn't it? तो यहाँ पे क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। मैं ये टेबल को लिख के आपको भेजूंगी, प्लीज उसको लर्न कर लीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10। सब्ट्रैक्शन होगा। अब कौन से? तो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, यहाँ पे भी एक प्लस एक माइनस। ठीक है, दोनों केस में। पर अब यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ यू नो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड। बहुत सारे अच्छे बच्चे मैंने देखा है जो इसमें कंफ्यूज हो जाते प्लस माइनस साइन में। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? इन दिस केस तब जब प्रोडक्ट नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ दो फैक्टर्स आएंगे, एक प्लस एक माइनस। तो कौन सा प्लस कौन सा माइनस, ठीक है, तो वो देखना है। तो जो आपके दो फैक्टर्स है वो हमेशा एक बड़ा एक छोटा होगा। तो जो बड़ा वाला फैक्टर है उसको जो मिडिल टर्म की आपकी साइन है वो बड़े वाले को, और जब यहाँ माइनस साइन है तो वो वाले बड़े वाले को भी आप माइनस साइन। समझ में आ रहा है? जो आपकी मिडिल टर्म की साइन है वो आप हमेशा बड़े वाले नंबर को दोगे। ठीक है, तो ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं हमेशा इस टेबल पे सबको फोकस रहने के लिए, बिकॉज मैंने कहा ये 9th और 10th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम यूज करते हैं, थोड़ा सा स्पेस मेरे लिए कम हो जाएगा, ट्राई टू पे अटेंशन। ठीक है, यहाँ ये ऐड है और यहाँ ये सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इस तरीके से हम वर्क करेंगे। एंड 2 3 सा, ठीक है, 6 इज पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पे कौन सी साइन है? सम की माइनस, तो दोनों की माइनस साइन आएगी। तो ऐसा कौन सा नंबर है? एक्चुअली 2 + 3 5, isn't it? So this could be written as x square minus 2x minus 3x plus 6. Parent हमने सीखा नहीं है क्लास 8 में। So what is the common factor? यहाँ पे मैं -3 कॉमन ले लूँ प्लीज। जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो याद रखिए कि अंदर वाले जो है उनकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये वाला नंबर नेगेटिव था, ये हो गया पॉजिटिव, और ये वाला पॉजिटिव था, ये हो गया नेगेटिव। और हमने 3 कॉमन निकाला तो 3x एंड 6, तो 3x में से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ x बचा, और 6 2 3 सा, तो क्या बचा 2। इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि जब आप ये वाला स्टेप ले रहे हो, थर्ड वाला, ओके, तो आपको यहाँ दो ब्रैकेट मिलेंगे और दोनों ब्रैकेट की साइन सेम होनी चाहिए। कुछ भी यहाँ वहां हो रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं दिख रही है और नहीं आ रही है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अब देखिए, आप दोनों ब्रैकेट कॉमन है, सेम है, मतलब उसको हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास? -2 -3। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब इसी टाइप का सिर्फ साइन चेंज है। ठीक है, सपोज मैं ये साइन यहाँ चेंज कर रही हूँ, प्लस कर रही हूँ। ठीक है, तो बहुत आसान है, प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम भी पॉजिटिव, तो दोनों की साइन पॉजिटिव। तो बहुत बहुत सिंपल सा माइंड चेंज करना, आई गेट ऑल प्लस साइन। ठीक है, समझ में आ रहा? ओके, अब जो बच्चों के लिए, मुझे पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम होती है सर, बट जो मैंने आप लोगों को देखा है, मतलब आई होप कि आप लोग ये मिस्टेक ना करो, बट आपने क्लास 8 में पढ़ा है, सो यू मस्ट हैव रियलाइज, और जो मैंने भी ऑब्जर्व किया, व्हेन इट कम्स टू माइनस साइन ना, पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, तो प्लीज, वैसे भी अभी देखिए नेगेटिव इज नॉट गुड,
ओके, बट राइट नाउ नेगेटिव इज वेरी गुड। कोरोना पॉजिटिव नहीं हो, पॉजिटिव इज डेंजरस। ठीक है, तो नेगेटिव से इतना हेट करने की जरूरत नहीं है, और या नेगेटिव से नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। समटाइम नेगेटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। ओके, तो आपके लिए नेगेटिव, कोरोना नेगेटिव होना इज अ पॉजिटिव साइन। तो उसी तरीके से नेगेटिव से डरना नहीं है। यू नो, समटाइम नेगेटिव इज ऑल्सो गुड। तो उस तरीके से सपोज आई टेक डाउन दिस क्वेश्चन लाइक दिस। अब देखिए, सिर्फ ये दो फैक्टर्स को मैं कितने सारे क्वेश्चंस बना सकूंगी, प्लीज लुक इट दैट। तो कितने वैरायटी ऑफ आंसर भी आ सकते हैं। डेफिनेटली जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगी तो उतने आंसर्स भी उतने हो सकते हैं। तो प्लीज देखिएगा यहाँ पे, अब क्या है क्वेश्चन मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, प्रोडक्ट इज नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें से कुछ। ओके, और दूसरा मैंने क्या हिंट दिया, सबट्रैक्शन होगा, मतलब कि जो आपके दो फैक्टर्स है उन दोनों के बीच का सबट्रैक्शन, यानी कि उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है हमें। तो अब हमारे पास सिक्स के दो फैक्टर्स हैं, सिक्स वन एंड टू थ्री। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस फाइव कौन सी पेयर देगी, सिक्स एंड वन या टू एंड थ्री। फाइव कैसे आएगा मेरे पास, यस ऑब्वियसली करेक्ट, सिक्स एंड वन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फाइव है, देखिएगा कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ पे भी फाइव है, यहाँ पे भी फाइव है, बट बिकॉज ऑफ दिस साइन एवरीथिंग चेंजेस हियर, isn't it? तो यहाँ पे जब माइनस साइन है, इसका मतलब कि हमारी वैल्यू सिक्स माइनस वन, तो आई विल डू ओके सिक्स एक्स, ओके वन एक्स इज एक्स माइनस सिक्स। अब प्रॉब्लम है इसके साइन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है, तो मैं किसको कौन सी साइन दूं। ठीक है, इसमें लड़ाई हो जाएगी, भैया मुझे कौन सी साइन चाहिए। तो हमने क्या रूल बनाया है, लुक हियर, बीच वाली साइन कौन सी है, वो साइन किसको जाएगी, बीच वाली साइन माइनस है तो बड़े वाले को माइनस है, बीच वाली साइन प्लस है तो बड़े वाले को प्लस है। अच्छा, तो यहाँ बड़ा कौन है, ये सिक्स है और ये वन है, तो ऑब्वियसली बड़ा हमारा कौन है, सिक्स है। तो ये वाली जो साइन है वो इसे देंगे, तो इसको क्या मिलेगा, इसकी उल्टी वाली साइन। I hope I am very clear. This is only the important part. बाकी तुम लोग सब करोगे, I'm very sure of it. But यहाँ पे confusion होता नहीं। After that is easy. और जब ये पॉलिनोमियल्स ये चल रहा है तो आपको इक्वल टू साइन लिखना है। So what is common, x minus 6? What is common? Nothing. Nothing doesn't mean 0. It's 1 because common factor is 1. Okay? अब मेरा देख लिया, कोई भी दो चार महीने बच्चे कहेंगे मैम ये तो आपने एक में भी सिखाया था, नया क्या सिखा रहा है उसमें। ठीक है, तो द न्यू पार्ट कम्स नाउ। आई होप द टेबल इज अंडरस्टूड टू यू। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू बिट डिफरेंट सम नाउ। जो आपने क्लास 8 के सम देखे थे, ठीक है ना, उसमें आपने आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमेशा 1 देखा है। आई होप आई एम क्लियर। आपने देखा होगा कि बहुत सिंपली आपके टेबल्स के डायरेक्ट आ रहा था। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और रिफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, एज पर योर क्लास 9, सपोज ये क्वेश्चन इस तरीके से कुछ है। ठीक है, तो मैं क्यों क्या फेंक दूं, निकाल दूं, हटा दूं, अब कैसे करेंगे। In this case, please pay attention here. In this case, the product is nothing but a into c. Comparing with general form, x square plus bx plus c. So what is the product is equal to a into c. मतलब जो आपका x square का जो कोएफिशिएंट है उसको आपको लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और वो आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा बिकॉज दिस टॉपिक इज वास्ट, सो आई होप आई एम गेटिंग इट। आपकी कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आप साइड बाय साइड लिखते जाना, आई विल क्लियर इट अप एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, तो अब मैं इसको कितना बार करूँ, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो सेम ही क्वेश्चन किया जा रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, मैंने क्या किया, जो ये 3 था ना उसको यहाँ पे एक दे दिया 2, मैंने ऐसा किया। तो मतलब ये हुआ, व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर अगेन, 2 3 जा 6 का, तो मैम सेम सम। ठीक है ना, ओके गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग, 2 3 एंड द प्लस साइन मतलब इजी, प्लस साइन मतलब क्या, दोनों को सेम साइन, कौन सी वाली, प्लस। ओके लेट्स डू इट, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, सो व्हाट इज कॉमन, पूरा 2x कॉमन है, isn't it? x प्लस 1, यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा x प्लस 1 कॉमन है।
अंडरस्टूड? फैक्टर्स पूरे ही डिफरेंट हो गए, सो एक साइन की वजह से, isn't it? सब कुछ चेंज हो जाता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। फाइन, अब ये हो क्या, इजी है, समझ में आया? एक माइनस वाला एग्जांपल ले लो, उसके बाद आई गो टू रियल नंबर्स। ओके, लेट्स टेक इट लाइक ओके, 9x² माइनस एक्स माइनस 10, इन दोनों को कंबाइन कीजिए, सो 9 10 जा 90, 90 के फैक्टर्स निकालिए, बहुत सारे मिलेंगे, बट आप लोग क्या करते हो, देखिए अभी जस्ट आप मुझे आंसर मत दीजिए और आप एक प्रोसेस सोचिए। 90 जैसे ही मैंने 90 का, तो आपके पास कितने सारे फैक्टर्स आ गए, 190 जा 245 जा 330 जा 4 सो मेनी फैक्टर्स। तो आप कहोगे मैम एक सम में हमारे 15 मिनट्स चलेगा, बट आपको एक चीज साथ में और भी देखनी है, मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट के साथ आपका सम भी इम्पोर्टेंट है। सो लुक एट दिस 1, तो 90 कैसे दो फैक्टर्स जो आपको 1 आंसर दे, थिंक थिंक, लिखना कुछ भी नहीं, थिंक 90 के दो फैक्टर्स जो आपको 1 दे, और हमेशा 1 मतलब कंसेक्यूटिव नंबर, जब आप दो बाजू बाजू के नंबर्स लेते हो तभी आपको 1 मिलता है, isn't it? जैसे मैं कहूँ डिफरेंस इज 2, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मुझे इससे भी ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपका मेंटल प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, व्हेन यू आर राइटिंग ओनली यू शुड अंडरस्टैंड, ओके 90 के दो फैक्टर्स, डिफरेंस 1 मतलब कौन से नंबर्स होने चाहिए, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब 1 by 1। अब 90 के फैक्टर्स देखिए कि कौन से ऐसे टेबल में आता है, एक के बाजू में एक, तो 9 10 isn't it so simple? So 9x², ठीक है, ये भैया -10 ले लो। अब हमारे फैक्टर्स क्या है, 9 10 जा, ओके, थिंक थिंक प्रोडक्ट क्या है, माइनस, एंड जब प्रोडक्ट नेगेटिव होती है तो मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट इज नेगेटिव, फैक्टर्स विल हैव डिफरेंट साइन। तो मैंने क्या यहाँ पे गलत लिखा है, यू शुड बी एबल टू फोकस to point out the mistake. What is the mistake here? Look at this part. Guess for the mistake. यहाँ पे डेलिब्रेट मैंने मिस्टेक की है, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लस एंड माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पे कौन सी, एक नेगेटिव होना चाहिए। अब कौन सा वाला नेगेटिव, ठीक है ना, तो यहाँ कौन सी साइन है, माइनस, तो इसका मतलब बड़ा वाला नंबर, बड़ा ये, इसका मतलब ये होना चाहिए मेरा पॉजिटिव साइन। आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ यू। एक्स वाली जो साइन है, जो मिडिल टर्म की साइन है, वो हमेशा मुझे बड़े वाले नंबर को देनी है, so that means 9x to be positive. Good, you could find it out. So now let's factorize. 9x common है, यहाँ पे -10 कॉमन है, तो दोनों पॉजिटिव हो गए, सेम साइन, क्लियर? आई होप आई एम वेरी क्लियर विद एग्जांपल। सी ये सारी चीजें ऐसी हैं ना, जैसे आप देखते हो, जैसे आप करते हो, तब आप सीखते हो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक बार किया और आ गया, आई डोंट हैव एनी शॉर्टकट। हाँ एक चीज है कि टेबल लर्न हो गया, और आप अगेन फिर भी वो आपके ब्रेन के ऊपर है कि हाउ एक्टिव योर ब्रेन इज, ठीक है ना, स्ट्राइक होना चाहिए, और ये स्ट्राइक तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप सोचोगे कि मैंने एक का ये सम किए, 2 सम किए, 4 सम किए, 10 सम किए, आ गया, नहीं, बिना सम किए भी आ जाएगा इफ योर माइंड इज क्वाइट एक्टिव एंड इट कैलकुलेट्स फास्टर, इट थिंक्स फास्टर, इट आंसर्स फास्टर, ओके स्पॉन्टेनियस होगा तो हो सकता है, बट अगेन प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, रिटर्न वर्क इज इम्पोर्टेंट, तो हर चीज में ध्यान रख के करना है। बहुत बार होता है कि आप सोचते सही हो बट आप लिखते गलत हो, सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट व्हाइल डूइंग सच क्वेश्चंस। अब जाते हैं हमारे क्लास 9 के थोड़े से रियल नंबर्स पे, ठीक है, क्योंकि रैशनल भी सीखा है। अब मैं कोई हिंट दे रही हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को ले रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अपना मैंने जो रैशनलाइजेशन सिखाया था ना, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आते हो, फिर से मैं इसी वाले क्वेश्चन पे जा रही हूँ, अब मुझे इसको और कॉम्प्लिकेटेड करना है, ठीक है, सो प्लीज रिमेम्बर दिस। देखिए मैं कैसे कॉम्प्लिकेटेड बना रही हूँ, यदि ये आपको स्ट्राइक हुआ ना कि मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया, तो आपके लिए फैक्टराइजेशन इज नॉट अ डिफिकल्टी। आज की सेशन थोड़ी सी 5 मिनट की लंबी हो सकती है, बिकॉज द मेन टॉपिक जो है, जो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इज फॉर दिस, अंडरस्टैंड हाउ आई एम मेकिंग द क्वेश्चन। इफ यू अंडरस्टैंड दैट factorization is easy for you, irrational number is not a difficult task for you, just see क्या कर रही हूँ मैं। इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया, 6 को मैंने फैक्टराइज किया 2 3 का, और मैंने 2 यहाँ दे दिया, आई गॉट अ न्यू क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 2 को, मतलब मेरे पास 6 था,
उसको मैंने 2 3 कर दिया। Can I split this 2? मैंने क्या सीखा है? irrational number सीखा है. So now I'm with grown up and act like a grown up. I'll show one more smartness. I will split this 2 as root 2 into root 2 into 3. Can I do that? Yeah. Okay. Did you understand how did I make the question? पहले सिंपल 6 दिया आपको क्लास 8, फिर थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट किया, 6 को मैंने 2 3 का इस 2 को प्रोडक्ट को यहाँ दिया, अब 2 को भी I could write it down as root 2 into root 2, so I might make my question like this. अब ऐसे हुआ तो आप क्या करो? सेम चीज करनी है, कुछ भी नया नहीं करना है, बस यहाँ पे 5x है तो फिर से go in reverse, 3 root 2 into root 2, 3 root 2 into root 2, क्या हो गया root 2, root 2 into root 2, 2 2 3 are 6. अच्छा 6 के फैक्टर्स क्या है? सेम 2 plus 3 2 और 3, राइट, 2 फैक्टर्स हैं, बना चलिए root 2x square plus 2x plus 3x plus 3 root 2. अब थोड़ा सा कॉमन निकालने में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 कैसे बनता है? रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है, तो जब मैं रूट 2 कॉमन निकाल रही हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा? सिर्फ x, ठीक है ना, प्लस 2x, तो फिर से x को चला गया, 2 में से भी रूट 2 चला गया, 2 में से रूट 2 चला गया, तो क्या बचता है? सिर्फ रूट 2, ओके, और यहाँ पे क्या है? 3 कॉमन है, तो क्या बच रहा है? x प्लस रूट 2, so x plus root 2 into root 2x plus 3. These are the factors. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं इतना नहीं है, यू कैन ट्राई. चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे से लिखती हूँ. सेम क्वेश्चन, आई एम राइटिंग इट इन अ डिफरेंट वे. मैं यहाँ पे 3 है, ठीक है, लुक एट दिस फैक्टर्स. मैं सेम क्वेश्चन को मैं कितने पे ऐसे कर रही हूँ? इफ आई राइट दिस 3 as root 3 into root 3, ओके, और थोड़ी सी साइन चेंज कर रही है, तो मैं root 3 x square minus 5x minus 2 root 3. Okay, sorry, plus. Same way, ठीक है ना, सेम वे बट रिटर्न स्प्लिटिंग 6 ही है. 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव साइन. देखिए फैक्टर्स निकालने में पहले तो आपको साइन ही देनी है. पॉजिटिव साइन मतलब यू टू ऐड अप द टू नंबर्स. अच्छा उस दो नंबर कौन से हैं? तो नेचुरली अगेन 6 है, मतलब 2 and 3, ठीक है, तो 5 कैन बी स्प्लिट अप एज 2 and 3 एंड सेम वे यू डू. जो चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो डिफिकल्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू, जनरली स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैं नहीं कह रही हूँ कि डिफिकल्ट है, इसमें डिफिकल्ट पॉइंट ये आ जाता है दैट यू फॉरगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ योर बेसिक अलजेब्रा, यू फॉरगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन, और उसमें आप हरीनेस में मिस्टेक, आई मीन हरीली यू मेक मिस्टेक, सो यू हैव टू बी केयरफुल. तो इस टाइप के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में वी यूज 3 कॉन्सेप्ट. फर्स्ट आपका इंटीजर्स, सेकेंड आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड थर्ड आपका रियल नंबर्स, यानी कि स्पेशली इरेशनल नंबर्स. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस. कुछ डाउट है तो प्लीज आप लोग यू कैन राइट इट डाउन, ओके. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है. आपने देखा ना मैंने 6 को ही किस तरीके से डिफरेंट वे से स्प्लिट किया, तो इस तरीके से ये स्प्लिट करोगे तो आई थिंक यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर. बस ये की चीज है, ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि नथिंग इज रॉन्ग इन दिस, ठीक है ना. I hope I'm very clear. So I think Aditya had some doubt. So before discussing anything, I'll just take up one doubt. When do we multiply the first term with the third term? Obviously, जब coefficient of x square दिया हो, जब x square है तो coefficient of x square क्या है? 1 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. But आपका coefficient of x square 1 से ज्यादा होता है, कोई भी नंबर होता है, that time you multiply. That's all. Okay? और कोई डाउट है प्लीज बताइए, वरना मैं एक और एग्जाम्पल लेके डिस्कस करती हूँ यहाँ पे. ओके इसमें बहुत सारे हिस्ट्रीज में बड़े नंबर्स नहीं आते हैं. चलिए अब मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है. सो यू कुड टेल मी द फैक्टर्स हियर. ये ऐसा सम ये एग्जाम में आ चुका है एंड देन आल्सो चिल्ड्रन लीव इट थिंकिंग इट्स डिफिकल्ट. ओके तो थोड़ा सा ध्यान से ब्रैकेट को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कुछ भी सोचना ही नहीं, isn't it?
2 into root 3, 2 plus root 3 ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, isn't it? यहाँ पे ये चीज दी हुई है, तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो प्लस 2x प्लस रूट 3x प्लस 2 रूट 3. Pairing, what is common? So x plus 2 into x plus 3. तो बहुत बार ये क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ आता है, जब मिडिल टर्म में भी इरेशनल नंबर आता है तो समटाइम्स इट्स ऑलरेडी गिवन टू यू, यू हैव टू जस्ट स्प्लिट इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू इट, यू डोंट हैव टू डू इट. ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा आपको दिमाग में नहीं लगाना. आई टेक वन मोर एग्जांपल टू हेल्प यू आउट. चलिए, could you try this? Yes. Just think on this. How will you work? Otherwise, I am explaining. Okay. Now look at this. Pi root 2 and root 2. Pi root 2 into root 2. क्या हुआ? 10. So 10 के factors plus sign. So both the factors will have plus sign. 7. कैसा मिलेगा 7, 5 and 2 को क्या करोगे? Add करोगे. You don't have to search for other factors. So this root 2x square plus 5x plus 2x plus 5 root 2. So only common is x. यहाँ पे क्या कॉमन है आपके पास? रूट 2 and 2. रूट 2 कॉमन है. और यहाँ पे एक चीज, जैसे कभी कभी ना ये स्ट्राइक नहीं होता, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो मेरा ब्रैकेट आया फर्स्ट वाला, वो सेम मुझे सेकंड टाइम भी मिलना चाहिए. देयर इज नो अदर चॉइस. तो नेचुरली मेरे पास सेकंड टाइम भी वो ब्रैकेट आना चाहिए. तो मुझे रूट 2, तो मुझे यहाँ पे रूट 2, मतलब यहाँ पे रूट 2 चाहिए, तो नेचुरली ये 2 को मुझे स्प्लिट करना है, और ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, नहीं मतलब रूट 2 मुझे कॉमन निकालना है. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद root 2x plus 5. I hope I'm very clear with this. Yes. So अब ये वाली जो exercise है, it requires lots and lots and lots of practice. It's up to you how you do it. Okay, Aditya, I hope I'm very clear with the same. Okay, still anyone you have the doubt, you can contact me personally. I'll be very happy to help you out. हाँ, कभी might be हो सकता है जैसे सृष्टि के साथ हुआ कि coincidentally when she told us the result what was going on, so I couldn't do it at the same time. But at least you send me the doubts, I'll come to know. And I want you to, be in touch with me personally through the WhatsApp. You talk to me, you give me the comments. I don't mind. I want you to give me the comments, but not in the group. क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि जो आप मुझसे कहो वो दूसरों को भी जानना जरूरी है. So you definitely talk to me after the session. Give me your comments, give me your views. यहाँ पे भी आप दे सकते हो. आपका thumb impression जो है, thumbs up करोगे तो I'll be very happy. You can subscribe. Very happy for that. That at least I come to know that you are satisfied with my work. और यदि कोई डाउट्स हैं और भी ज्यादा, तो यू कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, व्हाट्सएप करिए, राइट डाउन द डाउट्स एंड डू इट. बट प्लीज अगेन, अभी जो बाद में भी इसको देखते हैं, प्लीज सी टू इट दैट यू क्लियर अप द डाउट्स, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. दिस इज यस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. 10th के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 9th के लिए नहीं है. सो प्लीज डोंट लीव द थिंग्स, डोंट लीव इट, वॉच इट अगेन, learn the doubt, and please put the attendance. I'm sending the link to the group. Okay, I hope no issues are there. Thank you children. We'll meet day after tomorrow. Okay, thank you. By the time यदि टाइम टेबल आ जाता है